اماما اب بس کرو، اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے اماما سے کہا۔ میں نے کب کہا کچھ ہوگا؟ تم سو جاؤ، تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ لیکن میں یہیں بیٹھوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سلار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے پھر کہا، اماما تم اگر بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہارا گھر نظر آتا ہے۔ سلار نے ایک بار پھر کچھ کوشش کی تھی، یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بار بول نہیں سکا، اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا، وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی، وہ 9 سال بعد اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارا گھر کا لان اور فوج تک نظر آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اماما ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کون سا کمرہ؟ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ، پھر صبح میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ سلام نے آنکھیں کھول کر کہا، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ بے حد خفگی سے سیدھی ہو گئی۔ اوپر والا فلور لاکڈ ہے۔ اماما جاتے جاتے رک گئی، وہ یکدم مایوس ہوئی تھی۔ سلام مجھے لے کر جاؤ اوپر۔ وہ پھر اس کا کندھا ہلانے لگی۔ اس وقت تو نہیں لے کے جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے مجھ سے؟ وہ اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ ہے، اس لیے تو نہیں لے کر جا رہا۔ صبح وہاں جانا تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے، تم انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟ سلام نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ویسے بھی مجھے تمہیں پتا ہے کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں، صبح ملازم سے پوچھ لوں گا۔ سلام نے جھوٹ بولا۔ اوپر کا فلور مقفل نہیں تھا، لیکن اماما کو روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ سلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور فلور میں تب ان لوک کرواؤں گا اگر تم ابھی سو جاؤ۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں بیڈ کے اس طرف سوؤں گی۔ سلام نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی تھی، اور میں لائٹ بھی آن رکھوں گی۔ وہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اب پاؤں سے ٹیک لگائے دونوں گھٹنے جھکیڑے بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آئے گی، سلار نے کمبل سے اس کے پاؤں اور ٹانگیں ڈھانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو روشنی میں ہی نیند نہیں آتی؟ وہ کچھ جذبت ہو کر بولی۔ اب اندھیرے میں آتی ہے، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تو پھر مجھے روشنی میں ہی نیند آتی ہے۔ سلار نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تمہیں ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی نیند کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ وسیم غصے کے ساتھ سلار نے کچھ آگے جھکتے ہوئے سائڈ ٹیبل لیمپ اور دوسری لائٹ آف کرنی شروع کر دی۔ اماما خفگی سے بیٹھی، لیکن اس نے سلار کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرہ اب نیم تاریک تھا، لیکن بیرونی روشنی کی وجہ سے اماما کا گھر زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ سلار اب کچھ جھلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی پردے ہٹا کر کھڑکی میں کھڑا ہو۔ وہ خواہش نہیں تھی، آس تھی، اور وہ اس آس کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ صبح گاؤں جانا ہے ہمیں۔ وہ اب اس کی توجہ اس کھڑکی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے، اماما نے دو ٹوک انکار کیا۔ سلار کو اس کی توقع تھی، تمہیں گاؤں لے جانے کے لیے لے کر آیا تھا، سلار نے کچھ خفگی سے کہا۔ تم جاؤ، مجھے کسی گاؤں میں دلچسپی نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ سلار یک دم کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اس نے پردے برابر کر دیے۔ باہر آنے والی روشنی بند ہوتے ہی کمرہ یک دم تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اماما نے بے حد خفگی کے عالم میں لیٹتے ہوئے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ سلار کے جاگنے سے کھلی۔ پھیری ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا، اس نے اٹھ کر سب سے پہلے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے۔ سلار نے اسے کچھ ہمدردی سے دیکھا۔ وہ انٹرکام اٹھا کر خانسامہ کو کھانے کمرے میں لانے کا کہہ رہا تھا۔ اماما کے کمرے میں لائٹ آن تھی، لیکن کھڑکیوں کے آگے اب بھی پردے گرے ہوئے تھے۔ اسے جیسے کچھ مایوسی ہوئی۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر آئی، تب تک خانسامہ کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانا ختم کرتے ہی اماما نے کہا، اب چابیاں لے لو، اوپر چلیں، مجھے نماز پڑھ کر آنے دو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اس بار سلار نے جیسے اماما کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، اسے لے کر وہ اوپر کے فلور آ گیا۔ کمرہ کھلا دیکھ کر اماما نے اسے خفگی سے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ سلار کی کسی بات پر ناراض نہیں ہو رہی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔
वहां से इसके घर का पूरा लॉन और पोर्च नजर आ रहा था। लॉन बिल्कुल बदल गया था। वो वैसा नहीं रहा जैसा कभी होता था। जब वो वहां थी तब वहां वो दो कुर्सियां भी नहीं थी जो पहले होती थी। लॉन में लगी बेलें अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और फैल चुकी थी। आंसुओं का एक नया रेला इसकी आंखों में आया था। सलाह ने इस दफा से कुछ नहीं कहा। कहना बेकार था, इसे फिलहाल रोना था। वो जानता था। वो मस्जिद में नमाज और कुछ देर कुरान की तिलावत करने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आया था और हस्बे तवक्कुत तब भी वो अमामा कमरे में नहीं आई थी। वो गांव जाने के लिए तैयार होने के बाद इसे खुदाफिज कहने ऊपर आया था। इसे साथ ले जाने का इरादा पहले ही तय कर चुका था। 2.5 घंटे के बाद भी वो खिड़की के सामने इसी तरह खड़ी थी। सलार के अंदर आने पर भी इसने पलट कर नहीं देखा था। सलार ने इसे मुखातिब करने के बजाय कमरे में दूर पड़े सोफे को कुछ जद्दोजहद के साथ खिड़की की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। यहाँ बैठ जाओ, तुम कब तक इस तरह खड़ी रहोगी? सोफा धकेल कर इसके करीब लाने के बाद सलार ने इसको मुखातिब किया और तभी इसने अमामा का चेहरा देखा। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इसकी आंखें और नाक सुर्ख थी। सराह ने गर्दन मोड़ कर खिड़की से बाहर देखा। वहां एक गाड़ी में कुछ बच्चे सवार हो रहे थे और एक औरत को खुदाफिज कह रहे थे। रिजवान के बच्चे हैं। सलाह ने गाड़ी को स्टार्ट होते देखकर अमामा से कहा। अमामा ने कुछ नहीं कहा। वो पलके झपकाए बगैर कांपते होठों के साथ बस इन्हें देख रही थी। सलाह ने इससे कुछ नहीं पूछा। 9 साल लंबा अरसा था। पता नहीं मजीद इनमें से किसको वो पहचान सकी थी और किसको नहीं, और इनमें से किसको वो पहली बार देख रही थी। वो औरत अब अंदर चली गई थी। इसके कंधों पर हल्का दबाव डालते हुए सलाह ने इससे कहा, बैठ जाओ। अमामा ने सोफे पर बैठते हुए दुपट्टे के पल्लू से आंखें और नाक रगड़ने की कोशिश की। सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसका चेहरा खुश्क हुआ था। बरसात फिर होने लगी थी। सलार पंजों के बल इसके सामने चंद लम्हों के लिए बैठा। इसने मामा के दोनों हाथ तसल्ली देने वाले अंदाज में अपने हाथों में लिया। इसके दोनों हाथ बेहद सर्द थे। वो इसके हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। कमरे की सर्दी को इसने पहली बार महसूस किया था। हीटर ऑन करने के बाद इसने कमरे की अलमारी में कोई कंबल ढूंढने की कोशिश की और एक कंबल इसे नजर आ ही गया था। मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। 10-11 बजे के करीब पापा और मम्मी उठ जाएंगे, तब तुम नीचे आ जाना। इसकी टांगों पर कंबल डालते हुए इसने अमामा से कहा। वो अब भी इसी तरह दुपट्टे से आंखें और नाक रगड़ रही थी, लेकिन इसकी नजरें अब भी खिड़की से बाहर थी। सलार और ये कमरा जैसे इसके लिए अहम नहीं रहा था। वो इससे क्या कह रहा था इसने सुना ही नहीं, और सलार ये जानता था। वो इसे खुदा हाफिज कहते हुए चला गया। वो अगले 4 घंटे इस तरह सोफे पर जमी बैठी रही। इस दिन इसने 9 साल के बाद बारी बारी अपने तीनों भाइयों को भी घर से जाते देखा था। वो वहां बैठी इन्हें देखती हिचकियों से रोती रही थी। वहां बैठे हुए इसे लग रहा था कि इसने यहाँ आकर गलती की है। इसे नहीं आना चाहिए था। इतने साल से इस सब्र के जो बांध वो बांधती चली आ रही थी, अब वो बंद बांधना मुश्किल हो रहा था। वो पहले इस्लामाबाद आना नहीं चाहती थी और अब यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो इसी तरह चोरी छुपे इस घर में रहती, इस तरह रोज अपने घर वालों को देखती रहती। इसके लिए ये भी बहुत था। वो अहमकाना सोचती, लेकिन वो सोच रही थी। वो हर बात सोच रही थी जिससे वो यहाँ अपने माँ बाप के घर के पास रह सकती हो। सलाह ने गांव पहुंचने के चंद घंटों बाद सिकंदर को फोन किया। मैं भी हैरान था जब मुलाजिम ने मुझे बताया कि वो ऊपर गेस्ट रूम में है। मैं सोच रहा था पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही है। सलाह ने इन्हें अमामा को वहां से बुलवाने के लिए कहा था और सिकंदर ने इसे जवाबन कहा, क्या जरूरत थी इसे ख्वामख्वाह वहां ले जाने की? घर तो इसका तुम्हारे कमरे से भी नजर आता है। लेकिन घर वाले इसे गेस्ट रूम से ही नजर आ सकते थे, सलाह ने कहा। सलाह से बात खत्म करने के बाद सिकंदर उठकर ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आए थे। बेटा नीचे आना था, हम लोगों के पास आकर बैठे कुछ देर। सिकंदर ये कहते हुए अंदर आए और अमामा कुछ गड़बड़ा कर उठी। वो इनके वहां आने की तवक्को नहीं कर रही थी और इसके चेहरे पर एक नजर डालते ही सिकंदर एक लम्हे के लिए खामोश हो गए थे। इसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। रोने वाली क्या बात है बेटा? सिकंदर ने इसके सर को थपकते हुए कहा। नहीं, वो बेहद नदामत से इनसे नजरें मिलाए बगैर बोली, चलें नीचे आए, तैयबा भी पूछ रही है आपका। सिकंदर ने एक बार फिर इसका सर थपका। ये सलाह नहीं था जिसे वो धड़ल्ले से इनकार कर देती। जी,
इसने ये कहते हुए सोफे पर पड़ा कंबल उठाने की कोशिश की। सिकंदर ने इसे रोक दिया। मुलाजिम उठा लेगा, आप आ जाएं। इसका चेहरा देखकर तैयब भी बेचैन हो गई। जैसी भी हालत में शादी हुई, बहरहाल वो एक ऐसी फैमिली थी जिसे वो तवील अरसे से जानते थे और जिनकी दीवार के साथ इनकी दीवार जड़ी थी। इस रिश्ते का पास बहू होने के नाते इन पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी आयद करता था। खुद वो भी अमामा को बचपन से देखते आए थे। किसी न किसी हद तक वो इनके लिए बेहद शनासा थी। वो लोग इसे तसल्लियां देते, इससे बातें करते रहे। फिर सिकंदर ने इसे आराम करने के लिए कहा। वो कमरे में आकर कुछ देर के लिए खिड़की के पास बैठी रही, फिर कुछ थकी हुई आकर बेड पर लेटकर सो गई। 4:30 बजे इसे मुलाजिम ने इंटरकॉम पर उठाया था। अफ्तार का वक्त करीब था। सिकंदर और तैयबा भी इसका इंतजार कर रहे थे। तलाल भी अफ्तार से चंद मिनट पहले ही पहुंचा था। सिकंदर और तैयबा इस रात भी कहीं मौजूद थे। कुछ देर उनके पास बैठ कर वो इन्हें खुदा हाफिज कहते हुए चले गए। रात को वो 12 बजे के करीब वापस आए। 11-12 बजे सलार और उसकी फ्लाइट थी। तैयबा जाने से पहले अमामा को कुछ तोहफे देने आई थी। अमामा को वो तोहफे याद आ गए जो वो कराची से इन दोनों के लिए लेकर आई थी। अमामा को हैरत हुई। जब सलार तैयबा से मिलने के बाद सोने के लिए लेट गया था, तो मुझे 10 बजे उठा देना, इसने अमामा को हिदायत दी थी। 11 बजे फ्लाइट है, देर तो नहीं हो जाएगी? अमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, पहुंच जाएंगे, इसने आंखें बंद करते हुए कहा। वो कुछ देर बैठी इसे देखती रही, फिर वो दोबारा ऊपर के फ्लोर के इसी कमरे में आ गई। इसके घर के पोर्च में कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वो वीकेंड था और वो यकीनन घर पर नहीं थे। कहाँ हो सकते थे? अमामा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। 9 साल के बाद ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। इसे उम्मीद ये थी कि वो वहां बैठी इन्हें वापस आते देख सकती, लेकिन 10 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आई। वो बोझल दिल और नम आंखों के साथ उठकर नीचे आ गई। सलार को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जाने के लिए सामान समेट खड़ा था। मामा का दिल मजीद बोझल हुआ। तो बिल आखिर एक बार फिर सब कुछ छोड़कर जाने का वक्त आ गया था। बाहर पोर्च में ड्राइवर एक गार्ड के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सिकंदर उस्मान ने गार्ड को एयरपोर्ट तक साथ जाने की हिदायत की थी। वो हर तरह की एहतियाती तदाबीर कर रहे थे। सलाह ने सामान गाड़ी में रखने के बाद चाबी ड्राइवर से ले ली। अमामा ने हैरानी से इसे देखा। हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, पापा आए तो उन्हें बता देना। ड्राइवर ने कुछ एहतजाज करने की कोशिश की। शायद सिकंदर इसे जरूरत से ज्यादा हिदायत कर गए थे, लेकिन सलार की एक झाड़ ने इसे खामोश कर दिया। और अब इतनी वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर से निकलते ही पापा को फोन कर दो, वो गाड़ी में बैठा हुआ इससे कह रहा था। इसे यकीन था कि वो इसके घर से निकलते ही काम करेगा, इसलिए गेट से निकलते ही इसने सिकंदर के फोन पर कॉल की थी। वो कुछ देर के लिए सिकंदर का फोन इंगेज करना चाहता था। पापा, हम लोग निकल रहे थे तो सोचा आपसे बात कर लूं, सलार ने सिकंदर से कहा। अच्छा किया, जरा मम्मी से बात करा दे, इसने सिकंदर के कुछ कहने से पहले ही सिकंदर से कहा। इसे खदशा था कि सिकंदर ड्राइवर की इनकमिंग कॉल देखकर चौंकेंगे। वो अगर गाड़ी में इनसे बात कर रहा है तो ड्राइवर इन्हें क्यों कॉल कर रहा था? अलबत्ता तैयबा इससे बात करते हुए किसी इनकमिंग कॉल को चेक नहीं करती, और अगर करती भी तो इनको शक नहीं होता। अगले 15 मिनट वो तैयबा के साथ बातें करता रहा। साथ बैठी अमामा कुछ हैरान थी, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज किया था। वो इतनी लंबी बातें करने का आदी नहीं था जितना वो अब यकदम बातूनी हो गया था। इधर यही हैरानी तैयबा को भी हो रही थी। सिकंदर डिनर टेबल पर चंद दूसरे अफराद के साथ मसरूफ थे। 15 मिनट लंबी गुफ्तगू के बाद जब सालार को यकीन हो गया कि ड्राइवर अब तक सिकंदर को कई कॉल्स करने के बाद तंग आकर कॉल्स करना छोड़ चुका होगा, या कम से कम दोबारा करने की अगली कोशिश कुछ देर बाद ही करेगा, तो इसने खुदाफिज कहते हुए फोन ऑफ कर दिया। तैयबा और सिकंदर की वापसी 12 बजे से पहले मुतवक्का नहीं थी, और अब अगर ड्राइवर इसे 5-10 मिनट बाद भी इनकी बात होती तो वो बहुत फासला तय कर चुके होते। बाय रोड आने की क्या जरूरत थी? इसका फोन बंद होते देख कर अमामा ने इससे पूछा। यूं ही दिल चाह रहा था, कुछ यादें ताजा करना चाहता था, सलाह ने सेल फोन रखते हुए कहा। कैसी यादें? वो हैरान हुई। तुम्हारे साथ पहले सफर की यादें। वो कुछ देर इससे नजरें नहीं हटा सकी। वो इस शख्स से क्या कहती कि वो इस सफर को याद नहीं करना चाहती थी। वो इसके लिए सफर नहीं था, खौफ और बेयकीनी में गुजारे चंद घंटे थे जो इसने गुजारे थे। मुस्तकबिल इस वक्त एक भयानक भूत बनकर इसके सामने खड़ा था, और इस रास्ते में वो भूत मुसलसल इसे डराता रहा था। मेरे लिए खुशगवार नहीं था वो सफर, इसे थके से लहजे में सलार से कहा। मेरे लिए भी नहीं था, सलार ने भी इसी अंदाज में कहा। कई साल हॉन्ट करता रहा मुझे, देखने आया हूँ कि अब भी हॉन्ट करता है।
वो बात कर खत्म करते हुए इसे देखकर बहुत मदम अंदाज में मुस्कुराया। अमामा खामोश रही। कई साल की वो पहली रात एक बार फिर से एक इसकी आंखों के सामने आने लगी। और आंखों के सामने सिर्फ रात ही नहीं बल्कि जलाल भी आया था। इस रात की तकलीफ का एक सिरा इसकी जात के साथ बंधा था, दूसरा इसकी फैमिली के साथ इसने दोनों को खोया था। अगली सुबह का सूरज हमेशा जैसा होता, इसकी जिंदगी वैसी नहीं रही थी। कभी वो सोच सकती थी कि वो कभी इस रात को सिर्फ तकलीफ समझकर सोचेगी, तकदीर समझकर नहीं। इसकी आंखें भीगने लगी थी। बराबर में बेटा शख्स आज इसके आंसुओं से बेखबर नहीं था, लेकिन इस वक्त बेखबर था। इसने कुछ कहे बगैर हाथ बढ़ाकर इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अम्मा आंखें पोंछने लगी थी। वो सारा नक्शा जो इसने अपनी जिंदगी का खींचा था, इसमें ये शख्स कहीं नहीं था। जिंदगी ने किस किस को किसके साथ जोड़ दिया, किस ताल्लुक को कहाँ से तोड़ा था, पता ही नहीं चला। सफर खामोशी से हो रहा था, लेकिन तय हो रहा था। अब बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा हो। अमामा को कई साल पहले की इसकी रेस ड्राइविंग याद थी। जिंदगी की कदर हो गई है अब। इसने सलार से हाथ छुड़ाते हुए पूछा, तुम्हारी वजह से एहतियात कर रहा हूँ। वो बोल नहीं सकी। खामोशी का एक और वक्फा आया। वो शहर की हदूद से बाहर निकल आए थे और सड़क पर धुंध महसूस होने लगी थी। यहाँ धुंध गहरी नहीं थी, लेकिन मौजूद थी। कभी दोबारा सफर किया अकेले इस रोड पर? अमामा ने कुछ देर बाद पूछा। मोटरवे से जाता हूँ अब, अगर गाड़ी में जाना हो तो। बस एक बार आया था कुछ माह पहले। वो कह रहा था, जब पापा ने मुझे तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ नोट दिया। क्या रात थी। वो जिसे तकलीफ से कराहा और फिर हंसा। उम्मीद थी जिसको इस रात में मैं मुजस्सिम फना होते देखा। समझ में आया मुझे कि तब इस रात तुम किस हालत से गुजरी होगी। अजियत से बहुत ज्यादा, मौत से जरा सी कम, लेकिन तकलीफ इसको कोई भी नहीं कह सकता। विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए वो जो कुछ इस तक पहुंच रहा था, इस कांच से वो भी गुजरी थी। नम होती आंखों के साथ गर्दन सीट के पुश से टिकाए वो इसे देख रही थी। मैं सारा रास्ता बस यही सोचता रहा कि अब करूंगा क्या, क्या करूंगा। मैं जिंदगी में सोच रहा था, अल्लाह ने मुझे जरूरत से ज्यादा जिंदगी दे दी है। तुम्हारे साथ बुरा किया था, बुरा तो होना ही था मेरे साथ। याद है ना मैंने तुम्हारे साथ सफर में कैसी बातें की थी। इसने अजीब से अंदाज में हंसकर एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़ कर इसे देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली थी, फिर सलार ने नजरें चुराते हुए गर्दन सीधी कर ली। सफर फिर खामोशी से तय होने लगा था। वो ताल्लुक जो इनके बीच था, वो जिसे खामोशी को भी गुफ्तगू बना रहा था। लफ्ज इस वक्त खामोशी से ज्यादा बामायने नहीं हो सकते थे। अमामा भी गर्दन सीधी करके सड़क को देखने लगी। धुन अब गहरी हो रही थी, जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि अपनी माजी की धुन में दाखिल हो रहे थे। गहरी मालूम ना होने और हाथ को हाथ सजाई ना देने वाली गहरी धुन। क्या क्या मैं अपने अंदर छुपाए हुए थी। लेकिन जो कुछ था वो बोझल हो गया था, फरामोश नहीं हुआ था। सेल फोन की रिंगटोन ने इन दोनों को चौंका दिया। सेल पर सिकंदर का नंबर चमक रहा था। सलार हंस पड़ा। अमामा इसकी बेमकसद की हंसी को समझ नहीं सकी। हेलो। सलार ने कॉल रिसीव करते हुए सिर्फ इतना ही कहा था। इसे हैरत थी, सिकंदर उस्मान की कॉल इतनी देर से नहीं आनी चाहिए थी। शायद ड्राइवर ने इनके घर पहुंचने पर ही इन्हें सलार के एडवेंचर के बारे में मुतला किया था। सलार ने आवाज कुछ कम कर दी थी। जो कुछ सिकंदर इसे फोन पर कह रहे थे वो नहीं चाहता था कि वो अमामा तक पहुंचता। जी, जी। वो अब ताबेदारी से कह रहा था। सिकंदर इस पर बुरी तरह बरस रहे थे। और क्यों न बरसते, वो इन्हें बेवकूफ बनाता जैसे सलार के लिए बाएं हाथ का खेल था। और ये एहसास सिकंदर के गुस्से में इजाफा कर रहा था। उन्होंने कुछ देर पहले तैयबा के पर्स में पड़े अपने सेल पर ड्राइवर की मिस कॉल देखी थी और इससे बात करके वो खून के बूंद पीकर रह गए थे। बाय रोड लाहौर जाना इस वक्त इनके लिए इसकी हमाकत का आला तरीन मुजाहिरा था। लेकिन इसने जितने इत्मीनान से इनकी आंखों में धूल झोंकी थी, वो इनके लिए इश्तियाल अंगेज था। अब गुस्सा खत्म कर दें पापा, हम दोनों बिल्कुल महफूज हैं और आराम से सफर कर रहे हैं। इसने बिल आखिर सिकंदर से कहा। तुम जफर को धमकियां देकर गए थे कि वो मुझे इन्फॉर्म ना करे। धमकी? मैंने एक मुद्दाना दरख्वास्त की थी इससे कि वो आपको फिलहाल इन्फॉर्म ना करे। आप डिनर छोड़कर खामख्वा परेशान होते। वो बड़ी रसानियत से इनसे कह रहा था। मेरी दुआ है सलार कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो और तुम्हें इतना वो प्यार करे जितना तुम हमें करते हो। फिर तुम्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास होगा। वो हंस पड़ा। पापा इस तरह की बातें करेंगे तो मैं औलाद ही पैदा नहीं करूंगा। अमामा ने इसके जुमले पर चौंक कर इसे देखा। पापा दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलाद जल्द पैदा हो।
अमामा को चौंकते देखकर सलार ने फोन पर बात करते हुए इसे बताया। वो बेख्तियार सुर्ख हो गई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये इस तरह की दुआ का कौन सा वक्त और तरीका है। दूसरी तरफ सिकंदर फोन पर इसका जुमला सुनकर बेबसी से हंस पड़े थे। इनका गुस्सा कम होने लगा था। कई सालों के बाद इन्हें सलार से इस तरह बात करना पड़ी थी। वो अब इससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। सिकंदर को वो अपने हदूद अरबा के बारे में बताकर सलार ने फोन बंद कर दिया। पापा नाराज हो रहे थे। अम्मा ने संजीदगी से पूछा। खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, इसने जवाबन कहा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? अम्मा ने जैसे इसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो लोग मुझे वो नहीं करने देते जो मैं करना चाहता हूँ। कमाल की मंतक थी और बेहद संजीदगी से पेश की गई थी। चाहे तुम्हारे झूठ से किसी को दुख पहुंचे, मेरे झूठ से किसी को दुख नहीं पहुंचता, बल्कि गुस्सा आता है। इसे समझाना बेकार था। वो सलार था। वो अब अंदाजा लगा सकती थी कि सिकंदर ने इसे फोन पर क्या कहा होगा। रात के तकरीबन पिछले पहर एक सर्विस स्टेशन पर पहुंचे थे। ये जगह याद है तुम्हें? सलार ने गाड़ी रोकते हुए इससे पूछा। अममा ने धुल जगह इस जगह को देखा जहाँ कुछ लाइट्स और अंधेरे का मुकाबला करने में मसरूफ थी। नहीं, इसने सलार से कहा, ये वो जगह है जहाँ तुमने रुक कर नमाज पढ़ी थी। वो दरवाजा खोलते हुए नीचे उतर आया। अममा ने कदरे हैरान नजरों से इस जगह को दोबारा देखना शुरू किया। अब वो इसे किसी हद तक शनाख्त कर पा रही थी। वो भी दरवाजा खोलकर उतर आई। एक कपकपी इसके जिस्म में दौड़ी। वो आज भी एक स्वेटर और चादर में मलबूस थी। वो कमरा बदल चुका था और जहां उन्होंने बैठकर कभी चाय पी थी। चाय और चिकन बर्गर। सलार ने कुर्सी पर बैठते हुए इस आदमी से कहा, जो जमाइयां लेते हुए इन्हें अंदर लेकर आया और अब ऑर्डर के इंतजार में खड़ा था। अममा इसके ऑर्डर पर इसे देखकर मुस्कुराई। अब खा लोगे? वो जानता था इसका इशारा किस तरफ था। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दिया। लास्ट टाइम हम वहां बैठे थे, तुमने वहां नमाज पढ़ी थी। वो हाथ के इशारे से इस कमरे की मुख्तलिफ अतराफ को इशारा करते हुए कह रहा था। अम्मा को याद नहीं था। कमरे में जगह जगह टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई थी। फजर की अजान में अभी भी बहुत वक्त था और फिलहाल इस जगह पर काम करने वाले चंद आदमियों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब इस जगह पर चाय और बर्गर इतने बुरे नहीं थे जितने इस वक्त थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर थी, लेकिन इन दोनों में से कोई ना जायके को देख रहा था और न ही प्रेजेंटेशन को। दोनों अपने अपने माजी को जिंदा कर रहे थे। ये चंद बूढ़ और चंद दुखमों की बात नहीं थी, जिंदगी की बात थी जो ना जाने रेल की पटरियों की तरह कहाँ कहाँ से गुजरकर एक स्टेशन पर ले आई थी। कुछ मुकाम पर खड़े थे जहाँ इन पटरियों का कांटा बदला था। दूर करीब एक दूसरे में मदगम, और अब एक दूसरे के साथ इस रास्ते पर कोई नई यादें बनी थी। इनकी शादी के बाद सड़क के रास्ते इनका पहला सफर, और इन नई यादों ने पुरानी यादों को भुलाने की अमल का आगाज कर दिया था। टेबल पर बिल के पैसे रखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। अमामा ने भी उसकी पैरवी की। सलार ने चलते हुए इसका हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। अमामा ने इसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आई थी। अमामा, वो पिस्टल कहाँ है? वो इमारत से बाहर आते हुए इसके सवाल पर चौंकी। उसे क्या याद आया था? वो हंस पड़ी। अब्बू के पास है, इसने सलार से कहा। तुम वाकई चला सकती थी। सलार ने पता नहीं क्या यकीन दहानी चाही। हाँ, अमामा ने सर हिलाया, लेकिन इसमें गोलियां नहीं थी। वो इसके अगले जुम पर बेइख्तियार झटका। मेरे पास बस पिस्टल ही था, वो इत्मीनान से कह रही थी। इसने बेइख्तियार सांस लिया। इसकी आंखों में धूल इसने झोंकी थी या अल्लाह ने, वो अंदाजा नहीं कर सका। इस पिस्टल ने इसे जितना शौक और गुस्सा दिलाया था, अगर इसे अंदाजा हो जाता कि वो बुलेट्स के बगैर था तो सलार इस दिन अममा को पुलिस के हाथों जरूर अरेस्ट करवा कर आता। वो पिस्टल हाथ में लिए क्यों इतनी पुरस्मार नजर आई थी इसे, ये इसे अब समझ में आया था। तुम डर गए थे? अममा हंस रही थी। नहीं, डरा तो नहीं था, मगर शौक रह गया था। तुम सारा रास्ता रोती रही थी। मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था कि तुम मुझ पर पिस्टल निकाल लोगी। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे धोखा दिया। वो अब कुछ खफगी से कह रहा था। अमामा खिलखिला कर हंसी। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ रहे थे। बैठने के बाद भी जब वो गाड़ी स्टार्ट करने के बजाय विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा, तो अमामा ने इससे कहा, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे? मुझे क्यों ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा पिस्टल खाली भी हो सकता है? क्यों ख्याल नहीं आया? वो जैसे बड़बड़ाता हुआ एक बार कराहा। अब रोना मत, अमामा ने इसे छेड़ा। वैसे क्या करते थे तुम अगर तुम्हें ये पता चल जाता? मैं सीधा जाकर तुम्हें पुलिस के हवाले करता, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम्हें शर्म ना आती? अमामा बिगड़ी।
तुम्हें आई थी जब तुमने मुझ पर पिस्टल निकाल लिया था। मैं मोहसिन था तुम्हारा। सलार ने भी इसी अंदाज में कहा। मोहसिन थे? तुम मुझे धमका रहे थे। जो भी था, कम से कम मैं ये डिजर्व नहीं करता था कि तुम गन पॉइंट पर रख लेती मुझे। लेकिन मैंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मामा ने मुदाफियाना लहजे में कहा। तो मैंने कौन सा तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? गाड़ी अब दोबारा मेन रोड पर थी। लाहौर की हदूद में दाखिल होने तक अमामा इससे एक बार फिर खफा हो चुकी थी। वो अगले 2-3 दिन तक इस्लामाबाद तो ट्रांस में ही रही। वो वहां जाने से जितनी खौफजदा थी, अब वो खौफ भी एकदम खुद खत्म हुआ। महसूस हो रहा था इसका हतमी नतीजा ये निकला था कि वो अब इस्लामाबाद के अगले दौरे की मुंतजिर थी। इस गेस्ट रूम की खिड़की में खड़े सारा दिन किस किस को किस वक्त देखा था, और अगले 2-3 दिन सलार को भी बताती रही, और 13 दिन इसकी तान एक जुमले पर आकर टूटी। सलार, हम इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। सलार बेड पर बैठा लैपटॉप कोट में रखे कुछ ईमेल्स करने में मसरूफ था जब मामा ने इससे पूछा। वो पिछले आधे घंटे से इससे सिर्फ इस्लामाबाद की ही बातें कर रही थी, और सलार बेहद खामोश इसकी बातें सुन रहा था और इसका जवाब भी दे रहा था। नहीं, अपने काम में मसरूफ सलार ने कहा। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब यहाँ है। तुम जॉब बदल लो। नहीं बदल सकता। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कहा, मैं इस्लामाबाद में नहीं रह सकती। इस बार सलार ने बिल आखिर स्क्रीन से नजरें हटाकर इसे देखा। इस बात का क्या मतलब है? उसने बेहद संजीदगी से इससे पूछा। मेरा मतलब है कि मैं वहां रह लूंगी, तुम वीकेंड पर आ जाया करना। एक लम्हे के लिए सलार को लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं था। मैं हर वीकेंड इस्लामाबाद नहीं जा सकता। उसने बेहद तामुल से इसे बताया। कुछ देर खामोश रही। सलार दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। तो तुम महीने में एक दफा आ जाया करो। वो इसके जुमले से ज्यादा इसके इत्मीनान पर ठटका था। बाज दफा मैं महीने एक बार भी नहीं आ सकता, इसने कहा। तो कोई बात नहीं, यानी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वो ईमेल्स करना भूल गया था। मैंने ये तो नहीं कहा, मामा ने बेसाख्ता कहा। इसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इसके एहसासात को इतनी सफाई से जुबान देगा। पापा और मम्मी अकेले होते हैं वहाँ। इसने सलार से इसकी बात काटी। वो वहाँ अकेले नहीं होते। अम्मार और युसरा होते हैं इनके पास। वो दोनों आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरी बात ये कि पापा और मम्मी बड़ी सोशल लाइफ गुजार रहे हैं। इनको तुम्हारी सर्विसेज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मुझे है, सालार ने बेहद संजीदगी से इससे कहा। वो कुछ देर खामोश इसकी गोद में पड़े लैपटॉप की स्क्रीन को घूरती रही, फिर बड़बड़ाई। मैं इस्लामाबाद में खुश रहूंगी, यानी मेरे साथ खुश नहीं हो? वो जज्बज हुआ। वहां ज्यादा खुश रहूंगी। वो अब बिलाखिर साफ साफ अपनी तरजीहात बता रही थी। पापा ठीक कहते थे, मुझे तुम्हें इस्लामाबाद नहीं लेकर जाना चाहिए था। माँ बाप की बात सुननी चाहिए। वो बेख्तियार पछताया। देखो, अगर मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज देता हूँ तो कितनी देर रह सकती हो तुम वहाँ? हमें अगले साल पाकिस्तान से चले जाना है। वो इसे प्यार से समझाने की एक और कोशिश कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान तो आया करोगे ना? सलार का दिल खून हुआ। जिंदगी में आज तक किसी ने इसकी जात में इतनी अदम दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं अमेरिका में रहूं और मेरी बीवी यहाँ हो, इतना अबनॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं रख सकता मैं, इसने इस बार दो टोक अंदाज में कहा। वो कुछ देर चुप रही, फिर चंद लम्हे के बाद सलार ने इसके कंधे पर बेहद मोहब्बत और हमदर्दी से अपना हाथ रखा। सलार, तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी बीवी को साथ ले जाना। इस बार जिसे इसके हवास गायब हुए। अगर ये मजाक था तो बेहुदा था, और अगर वाकई तजवीज थी तो बेहद समझदिलाना थी। वो कई लम्हे बेयकीनी से इसका चेहरा देखता रहा। वो शादी के तीसरे हफ्ते इसे दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी ताकि वो अपने माँ बाप के करीब रह सके। सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अमामा ने इसके तासरात से कुछ नर्वस होते हुए इससे कुछ कहने की कोशिश की। सलार ने बड़ी बेरुखी से इससे अपने कंधे से इसका हाथ झटका। खबरदार, आइंदा मेरे सामने तुमने इस्लामाबाद का नाम भी लिया और अपने अहमकाना मशवरे अपने पास रखो। अब मेरा दिमाग खराब और चाटना बंद करो और सो जाओ। वो बुरी तरह बिगड़ा था। अपना लैपटॉप उठाकर वो बेहद खफी के आलम में बेडरूम से निकल गया था। अमामा की समझ में नहीं आया कि मैं इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात थी। इस वक्त इसे वाकई अंदाजा नहीं हो रहा था कि अपने माँ बाप की मोहब्बत में वो कितनी हमकाना अंदाज में सोचने लगी थी। लाइट ऑफ करके इसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की, लेकिन इसे नींद नहीं आई। इसे बार बार अब सलार का ख्याल आ रहा था। चंद लम्हे लेटे रहने के बाद वो एकदम उठकर कमरे से निकल आई। वो लाउंज का हीटर ऑन किए करीब पड़े सोफे पर बैठा काम कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर ठटका था। अब क्या है? अमामा को देखते ही इसने बेहद खफगी से कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। वो इसकी सख्ती से पूछने पर कुछ जज्बत हुई। कॉफी बना दूं तुम्हें? वो मुसालिहाना अंदाज में बोली। मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगा, वो इसी अंदाज में बोला।
वो इसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ कहे बगैर इसने सलार के बाजू पर हाथ रखते हुए इसके कंधे पर सर टिका दिया। ये दामद का इजहार था। सलार ने किसी रद्द-अमल का इजहार नहीं किया। इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए वो लैपटॉप पर अपना काम करता रहा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था। वो इसके कंधे पर सर टिकाए इसके इतने करीब बैठी हो और वो इसे नजरअंदाज कर देता अगर सिर्फ इसकी बीवी होती। ये अमामा थी। लैपटॉप की बोर्ड पर चलती इसकी उंगलियां थमने लगी। फिर एक गहरा सांस लेकर वो बड़बड़ाया, अब इस तरह बैठोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? तुम मुझे जाने का कह रहे हो? मामा ने बुरा माना। मैं तुम्हें जाने का कह सकता हूँ। इसने इसका सर चूमा। बहुत इम्काना बात कही थी तुमने मुझे। ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था तुम इतनी बदतमीजी करोगे मेरे साथ। वो हक्का बक्का रह गया। बदतमीजी? क्या बदतमीजी की है मैंने? तुम्हें एक्सक्यूज करना चाहिए जो कुछ तुमने मुझसे कहा। वो समझा वो नदामत का इजहार करने आई है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। अमामा ने बेहद खफगी से इसका कंधे से अपना सर ऊपर उठाते हुए इससे कहा, अब मैं एक्सक्यूज क्या करूं तुमसे? सलार ने इसकी उठी हुई थोड़ी देखी। क्या मान था, क्या गुरूर था, जिसे वो इसको ये तो करवा ही नहीं सकता। एक्सक्यूज करूं तुमसे? खफा की आंखों और उठी थोड़ी के साथ वो फिर पूछ रही थी। सलार ने नफी में सर हिलाते हुए झुक कर इसकी थोड़ी को चूमा। ये मान इसे ही रखना था। वो इसका सर झुका देने का ख्वाहिशमंद नहीं था। नहीं, तुमसे एक्सक्यूज करवा कर क्या करूंगा मैं? वो बेहद नरमी से इसकी थोड़ी को दोबारा चूमते हुए बोला। अमामा के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। क्या गुरूर था जो इसकी आंखों में झलका था। हाँ, वो कैसे इससे ये कह सकता था? इससे अलग होते हुए इसने सलार से कहा, अच्छा अब तुम एक्सक्यूज करो मुझसे, क्योंकि तुमने बदतमीजी की है। वो अब इत्मीनान से मुतालबा कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया। मुतारिफ से इतराफ चाहती थी। आई एम सॉरी। सलार ने इसका चेहरा देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आइंदा तुम ये ना कहना कि मैं इस्लामाबाद की बात ना करूं। वो बेहद फयाजाना अंदाज में इसकी मुआवजत कबूल करते हुए बोली। सलार के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैली तो सारा मसला इस्लामाबाद का था। इसे शायद ये खदशा हो गया था कि वो दोबारा इसे वहां नहीं लेकर जाएगा, और वो इसी खदशे के तहत इसके पास आई थी। क्या अंदाजे दिलबरी था। वहां इसके लिए कुछ नहीं था, जो भी था किसी के तुफैल था। वो हंस पड़ा। क्या हुआ? इसने उलझकर सलार को देखा। कुछ नहीं। सलार ने जरा सा आगे झुकते हुए बड़ी नरमी और मोहब्बत से इसे इस तरह गले लगाकर इसका सर और माथा चूमा, जिस तरह वो रोज ऑफिस से आने के बाद दरवाजे पर इसे देख कर करता था। गुड नाइट। वो अब इससे खुदाहाफिज कह रहा था। गुड नाइट। वो अपने शॉल लपेटते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए इसने गर्दन मोड़ कर सलार को देखा। वो इसे ही देख रहा था। वो अलविदाइया अंदाज में मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन मुस्कुराया था। अमामा ने कमरे में दाखिल होकर तो दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत देर तक इस बंद दरवाजे को देखता रहा। ये औरत जिस मर्द की जिंदगी में होती वो खुशकिस्मत होता, लेकिन वो खुशकिस्मत नहीं था। खुशकिस्मती इसकी जरूरत कहाँ रह गई थी इसे। हबीब साहब की बीवी ने कई चक्कर लगाए मेरे घर के। हर बार कुछ ना कुछ लेकर आती थी आमना के लिए। कहती थी हमें जहेज नहीं चाहिए, बस आमना का रिश्ता दे दें। कहती क्या थी, बल्कि मिन्नतें करती थी। अमामा के दफ्तर अपने बेटे को भी ले गई एक दिन। बेटा भी खुद आया माँ के साथ हमारे घर। बचपन से पला बड़ा था मेरी नजरों के सामने। वो सहन में चारपाई पर बैठा, सर झुकाए सुर्ख ईंटों के फर्श पर नजरें जमाए सईदा अम्मा की गुफ्तगू पिछले आधे घंटे से इसी खामोशी के साथ सुन रहा था। इसकी खामोशी सईदा अम्मा को बुरी तरह खली थी। कम वक्त ना हो ना, हाँ कुछ बोलता है ना ही ना। मजाल है एक बार ही कह दे कि आपने अपनी बच्ची की शादी मेरे साथ करके मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की, या यही कह दे कि मुझे गुनों वाली है आपकी बच्ची। वो बातों के दौरान मुसलसल खोल रही थी। इतवार का दिन था और वो अमामा के साथ सुबह वक्त बाकी का सामान ठिकाने लगाने आया था। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान को कुछ चैरिटी इदारों में भिजवाने का इंतजाम करके आया था। अमामा ने इस पर इतराज नहीं किया था, लेकिन सईदा अम्मा को इन दोनों ने ये नहीं बताया था कि वो सामान इनके घर नहीं कहीं और भिजवाया जा रहा है। दोपहर हो रही थी और वो इन तमाम कामों से फारिग होकर वहीं धूप में सहन में बिछे एक चारपाई पर बैठ गया था। अमामा अंदर किचन में अफ्तारी और खाने की तैयारी कर रही थी। इन्हें आज अफ्तारी वहीं करनी थी। धूप की वजह से सलार ने अपना स्वेटर उतार कर चारपाई के एक कोने पर रख दिया। जीन्स की जेब में रखा एक रुमाल निकालकर इसने चेहरे पर आई हल्की सी नमी को पोंछा। ये अमामा के रिश्ते की चौथी दास्तान थी जो वो सुन रहा था। बेसन को बर्तन में घोलते हुए अमामा ने सहन में खुलने वाली किचन की खिड़की से सलार को देखा।
इसे इस पर तरस आया। वो किचन में सईदा अम्मा की सारी गुफ्तगू सुन सकती थी और वो गुफ्तगू को किस हद तक काबिले इतराज हो रही थी वो इसका अंदाजा कर रही थी। 3 दफा इसने मुख्तलिफ बहानों से सईदा अम्मा को आकर टालने की कोशिश की। गुफ्तगू का मौजू बदला, लेकिन जैसे ही वो किचन में आती, बाहर सहन में फिर वही गुफ्तगू शुरू हो जाती। ऊंचा लंबा जवान, कद तुमसे कुछ 8 फुट ज्यादा ही होगा। हबीब साहब के बेटे का हुलिया बयान करते हुए सईदा अम्मा मुबारक के आखिरी हदूद को छू रही थी। सलार का अपना कद 6 फुट 2 इंच के बराबर था और आधा फुट होने का मतलब तकरीबन पौने 7 फुट था, जो कम से कम लाहौर में पाया जाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। अम्मा, जीरा नहीं मिल रहा मुझे, अमामा ने खिड़की से झांकते हुए सईदा अम्मा को कहा। इसके अलावा अब और कोई भी चारा नहीं था कि वो इन्हें अंदर बुला लेती। अरे बेटा, इधर ही है जिधर हमेशा होता है, जीरे ने कहाँ जाना है? सईदा अम्मा ने उठते हुए कहा। अमामा ने जीरे की डिबिया को सब्जी की टोकरी में डाल दिया। थोड़ी देर इसने सईदा अम्मा को जीरे की तलाश में मसरूफ रखना था, फिर बाद में कुछ और काम सौंप देती। इन्हें वो प्लान कर रही थी। मौलवी साहब से दम वाला पानी लाकर दूंगी तुम्हें, वही पिलाना है, इससे दिल मोम होगा इसका। सईदा अम्मा ने किचन में दाखिल होते हुए जो कुछ कहा वो न सिर्फ अमामा ने बल्कि बाहर सहन में बैठे सालार ने भी सुना था। क्यों, क्या हुआ? अमामा ने चौंक कर पूछा। वो आलू काट कर बेसन में डाल रही थी। कैसा पत्थर दिल है इसका, मजाल है किसी भी बात में हाँ मिलाए। वो दिल गिरफ्तार हो रही थी। अम्मा, आप इस तरह की बातें करेंगी तो कैसे हाँ मिलाएगा? आप ना क्या करें इस तरह की बातें, इसे बुरा लगता होगा। अमामा ने दबी आवाज में सईदा अम्मा को मना किया। क्यों ना करूं, इससे भी तो पता चले कोई फालतू चीज नहीं थी हमारी बच्ची, लाखों में एक जिसे हमने ब्याहा है इसके साथ। ये जीरा कहाँ गया? सईदा अम्मा बात करते हुए साथ जीरे की डिब्बे की गुमशुदगी पर परेशान होने लगी। मैंने आपसे कहा है ना, अब वो ठीक है मेरे साथ, अमामा ने अम्मा को समझाया। तू बड़ी साबिर है बेटा, मैं जानती नहीं हूँ क्या? बात तो करता नहीं मेरे सामने, तुझसे बाद में क्या करता होगा? सईदा अम्मा कायल नहीं हुई थी। सहन में चारपाई पर बैठे सलार ने जूते उतार दिए। स्वेटर को सर के नीचे रखते हुए वो चित लेट गया। अंदर से अमामा और सईदा अम्मा की बातों की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन सलार ने इन आवाजों से तवज्जो हटा ली। वो सिर्फ ईंटों की दीवारों पर चढ़ी सब्ज पत्तों वाली बेलें देख रहा था। धूप अब कुछ ढलने लगी थी, मगर इसमें अब भी तमाज़त थी। बराबर के किसी घर की छत से चंद कबूतर उड़कर सहन के ऊपर से गुजरे। इनमें से एक कबूतर कुछ देर के लिए सहन की दीवार पर बैठ गया। एक तवील अरसे के बाद इसने धूप में ऐसा सुकून पाया था। धूप में सुकून नहीं था, जिंदगी में सुकून था। इसने आंखें बंद की, फिर चंद लम्हों के बाद चौंक कर आंखें खोली। वो बड़े गैर महसूस अंदाज में इसके सर के नीचे एक तकिया रखने की कोशिश कर रही थी। इसे आंखें खोलते देखकर इसने कुछ मुआवजा खाना अंदाज में कहा। गर्दन थक जाती इस तरह तुम्हारी, इसने सलार का स्वेटर निकालते हुए कहा। सलार ने कुछ कहे बगैर तकिया सर के नीचे ले लिया। वो इसका स्वेटर तय करते हुए अपने बाजू पर डालते अंदर चली गई। ऐसी नाज बर्दारी की कहाँ सोचा था इसने, और वो ऐसी नाज बर्दारी चाहता ही कहाँ था इससे। साथ की ख्वाहिश थी वो मिल गया था, कुछ और मिलता ना मिलता। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। सो गया है क्या? सईद अम्मा ने खिड़की से इसे देखते हुए अंदर आती अमामा से पूछा। जी सो रहा है। अच्छा, मैंने तो सोचा था और भी और थोड़ा सा समझाऊंगी इसे, ये सो गया क्यों? सईदा अम्मा को कुछ मायूसी और तशवीश एक साथ हुई। थक गया है अम्मा, आपने देखा तो है कितना काम किया है इसने, मजदूरों के साथ मिलकर सामान उठवाया, कल भी घर में काम करवाता रहा है, आजकल बैंक में भी बहुत मसरूफ रहता है। अमामा मध्यम आवाज में अम्मा को बताती कि इसने किचन की खिड़की बंद कर दी थी। सलार की नींद कच्ची थी, इसे अंदाजा था। हाँ, लेकिन अमामा ने बेख्तियार सईदा अम्मा को आहिस्ता से टोका। अम्मा, आहिस्ता बात करें, वो उठ जाएगा फिर। देख तुझे कितना ख्याल है इसका। और एक वो है। सईदा अम्मा रंजीदा हुई। अम्मा अब बुरी तरह पछता रही थी। सलार के बारे में वो सईदा अम्मा से इस तरह की गीबत ना करती तो सईदा अम्मा इसे काबिल एतमाद समझती। अब मसला ये हो रहा है कि सईदा अम्मा को इसकी लाख यकीदानियों के बावजूद बैठे बिठाए सलार की पहली बीवी के हवाले से पता नहीं क्या क्या खदशात सता रहे थे। इन्हें जैसे यकीन नहीं था कि अमामा इनसे जरूर कुछ छुपाने लगी है। वो सलार के साथ इतने खुश नहीं थी जितना वो जाहिर करती थी, और इस तासुर की बुनियादी वजह सलार की वो मुकम्मल खामोशी थी जो वो सईदा अमामा के सिलसिले में की जाने वाली बातों पर इख्तियार करता था। सलार की खामोशी की वजह इस गुफ्तगू की नौयत थी जो सईदा अम्मा इससे करती थी। एक चीज जो अमामा ने इस सारी सूरत हाल में सीखी थी वो ये थी कि इसे अपने शोहर के बारे में
किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं करनी। इसकी ज़ुबान से निकले हुए कुछ लफ्ज़ अब इसी पर बहुत भारी पड़ रहे थे। बस अफ्तार और खाने के लिए यही कुछ? मैंने कितना सामान मंगवाया है बेटा, 2-4 खाने तुम बनाओ, मैंने कहा भी था, साथ वालों की नबीला को बुला लो। अमामा ने सईदा अम्मा को टोकते हुए कहा, जो किचन में खाने के सामान को तैयार होता देखकर चौंकी। वहाँ मेहमानदारी के कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे थे। अम्मा, सलार ने मना किया है, वो नहीं खाता ये चीजें। अमामा ने चावल निकालते हुए कहा, पहले इसको कोई पका कर देने वाला नहीं था, लेकिन अब है ना। पका कर देने वाला होता तो तब भी ना खाता। अम्मा, वो खाने पीने का शौक नहीं रखता, किसी भी चीज का शौक नहीं है इसे, किसी भी चीज। वो सोच में पड़ गई। अम्मा, झींगे वगैरह पसंद है इसे, लेकिन अब इस वक्त तो वो नहीं खिला सकती ना मैं इसे। आपको तो पता है मुझे कितनी घिन आती है इस तरह की चीजों से। अमामा ने अम्मा को बताया, लेकिन अगर इसे पसंद है तो बना दिया कर बेटा। अमामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। हाँ, आसान नहीं थी, और ना का मतलब सईदा अम्मा का एक लंबा लेक्चर सुनना था। खून कहाँ से निकल रहा था वो अंदाजा नहीं कर सका, लेकिन इसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो हथेलियों को तकलीफ और खौफ के आलम में देख रहा था। फिर इसने झुककर अपने सफेद लिबास को देखा। इसका लिबास बेदाग था। फिर हाथों पर लगा हुआ खून और जिस्म में होने वाली ये तकलीफ वो समझ नहीं पा रहा था। इसकी हथेलियों से खून के चंद कतरे इसके सफेद कमीज के दामन पर गिरे। सलार, असर का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़ लो। वो हड़बड़ाकर उठा था। अमामा इसके पास खड़ी इसका कंधा हिलाते हुए इसे जगा रही थी। सलार ने चारों तरफ देखा, फिर अपने दोनों हाथों को इसकी हथेलियां साफ की। इसका सांस बेतरतीब था। अमामा इसका कंधा हिलाकर चली गई थी। सलार उठकर बैठ गया। वो ख्वाब था जो वो देख रहा था। चारपाई पर बैठे इसने जवाब ख्वाब को याद करते हुए कुछ आयात की तिलावत शुरू कर दी। वो बहुत अरसे के बाद कोई रोना ख्वाब देख रहा था। सहन की धूप अब ढल चुकी थी। इसने बेख्तियार अपनी घड़ी पर देखा। असर की जमात का वक्त निकल चुका था। इसे अब घर में ही नमाज पढ़नी थी। अपनी जुराबें उतारते हुए वो भी ख्वाब के बारे में सोचकर परेशान होता रहा। अमामा तब तक इसका स्वेटर वजू करने के अंदर से चप्पल ले आई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसे स्वेटर देते हुए अमामा ने पहली बार इसके चेहरे को गौर से देखा। इसका चेहरा इससे सुर्ख लगा था। बुखार नहीं है, धूप में सोने की वजह से लगा होगा। सलाह ने स्वेटर पहनते हुए इससे कहा। अमामा को वो किसी गहरी सोच में लगा। वो इस हफ्ते फिर इसे अपने साथ कराची लेकर गया, लेकिन इस बार रात की फ्लाइट से वापस आ गए थे। वो पहले की तरह इस बार भी वो इसी होटल में रहे। सलार ऑफिस में मसरूफ रहा, जबकि वो अनीता के साथ घूमती फिरती रही। सलार से इसकी दोबारा मुलाकात इसी तरह रात फ्लाइट से पहले हुई थी। वो कुछ चुप थी, सलार ने महसूस किया, लेकिन इसके साथ इस फ्लाइट में इसके बैंक के कुछ गैर मुल्की ओहदेदारान भी सफर कर रहे थे। अमामा से इसको बात करने का मौका एयरपोर्ट से वापसी पर मिला। कार पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते ही इसने अमामा से पहला सवाल यही किया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? किससे बातें करूं? तुम तो से मसरूफ थे। अमामा ने जवाबन कहा। चलो अब बात करो। सलार ने मौजू बदलते हुए कहा। कैसा रहा आज का दिन? बस ठीक था। कहाँ गई थी आज तुम? इसने सलार को इन 3 जगहों के नाम बताए जहां वो अनीता के साथ गई थी, मगर सलार को इसकी बातों में पिछली दफा की तरह जोश नजर नहीं आया। तुम्हारी पे कितनी है सलार? वो चंद लम्हों के लिए ठटका। वो बेहद संजीदा थी। वो बेख्तियार हंस दिया। नो कमेंट्स। मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, लेकिन बेवकूफ नहीं। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं वो तुम्हारा जाती है? अगले सवाल ने सलार को और ज्यादा हैरान किया। नहीं, रेंटेड है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अपने जवाब पर इसे अममा के चेहरे पर मायूसी इतनी साफ नजर आई कि अब वो भी संजीदा हो गया। ऐसे ही पूछ रही थी, मैं समझी तुम्हारा अपना होगा। मैं सोच रही थी कि तुमने जो मुझे पैसे दिए हैं उससे हम कोई प्लाट खरीद लें। मामा, क्या प्रॉब्लम है? सलाह ने इस बार इसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना घर तो बनाना चाहिए ना हमारा। वो अब भी संजीदा थी। तुम अनीता का घर देख कर आई हो? एक धमाके की तरह सलार को ख्याल आया था। हाँ, अमामा ने सर हिलाया। सलार ने गहरा सांस लिया। इसका अंदाजा ठीक निकला। बहुत अच्छा घर है ना इसका? वो अब सलार से कह रही थी। हाँ, बहुत अच्छा है, सलार ने हाथ हटाते हुए कहा। तुमने स्विमिंग पूल की बोर्ड देखी है? नहीं, मैंने काफी महीनों पहले इनका घर देखा था। तब वो इंटीरियर नहीं हुआ था। वैसे स्विमिंग पूल में बोट का क्या काम? असली वाली नहीं है, छोटी सी है, लकड़ी की लगती है, लेकिन किसी और मटेरियल से बनी हुई है। इस पर एक छोटी सी विंड मिल है, और वो हवा से इस सारे स्विमिंग पूल में हरकत करती रहती है।
वो मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखता रहा। वो इसे कश्ती की एक-एक चीज बता रही थी। अनीता ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इसके खामोश होने पर सलार ने कहा। क्यों? वो चौंकी। मेरी शादी के तीसरे हफ्ते मेरी बीवी को अपना घर दिखा दिया। कहीं जमीन खरीद लेते हैं सलार। अमामा ने इसकी बात नजरअंदाज की। अमामा, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, पापा ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तो घर बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है। सलार ने इसे तसल्ली दी। कितने बड़े प्लॉट हैं? वो एकदम पुरजोश हुई। 10-10 मरले के हैं। बस, कम से कम 1-2 कनाल तो होना चाहिए। वो एकदम मायूस हुई। हाँ, 10 मरले कम हैं, 2 कनाल तो होना चाहिए। सलार ने तायद की। नहीं, वो ना हो, एक भी काफी है। इसमें एक सब्जियों का फार्म बनाएंगे, जानवर भी रखेंगे, एक समर हाउस बनाएंगे और एक फिश फार्म भी बना लेंगे। सलार को लगा अमामा को जगह अंदाजा करने में गलती हुई ही। एक कनाल में ये सब कुछ नहीं बन सकता अमामा, इसने मध्यम आवाज में कहा। वो चौंकी। लेकिन मैं तो एकड़ की बात कर रही थी। वो चंद लम्हे भौंचका सा रह गया। इस्लामाबाद में तुम्हें एकड़ जमीन कहाँ से मिलेगी? चंद लम्हों बाद इसने संभल कर कहा, इस्लामाबाद से बाहर तो मिल सकती है ना? अमामा संजीदा थी। तो फिर घर ना कहो, ये कहो कि फार्म हाउस बनाना चाहती हो तुम। नहीं, फार्म हाउस नहीं, एक बड़ी सी खुली सी जगह पर एक छोटा सा घर, जैसे कोई वादी, इस तरह की वादी में घर। पापा का भी एक फार्म हाउस है, कभी कभार जाते हैं हम लोग। तुम्हें भी ले जाऊंगा वहां। सलाह ने इसे फिर टाला। मैं फार्म हाउस की बात नहीं कर रही, असली वाले घर की बात कर रही हूँ। अमामा अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है अमामा, मैं इसमें फार्म हाउसेस या शहर से बाहर रिहाइश रखना अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम जब तक मैं काम कर रहा हूँ। और बड़े शहरों में बहुत मुश्किल है एकर्स में जमीन घर बनाना। ये तुम्हारे इन रोमांटिक नॉवेल्स में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। जो चीज मुमकिन है और प्रैक्टिकल है वो ये है कि चंद सालों बाद कोई लग्जरी फ्लैट लिया जाए या 2-4 कनाल का कोई घर लिया जाए। इससे ज्यादा अफोर्डेबल नहीं। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि 5-10 साल बाद इस्लामाबाद लाहौर से बाहर कोई फार्म हाउस बना लिया जाए। लेकिन मैं जानता हूँ 20 या 30 साल में हम 10 या 20 बार से ज्यादा वहां नहीं जा पाएंगे। वो भी चंद दिनों के लिए। वो हमारे लिए एक सफेद हाथी साबित होगा जिस पर हम हमारे यहाँ हर माह अखराजात होंगे। सलार को अंदाजा नहीं था कि इसने जरूरत से ज्यादा साफ गोई का मुजाहरा किया था। अमामा का रंग कुछ फीका सा पड़ गया था। वो हकीकत थी जो वो उसे दिखा रहा था। सलार ने इसे दोबारा बोलने नहीं देखा। सारा रास्ता इसकी खामोशी सलार को चुभती रही। अच्छा, तुम घर का एक स्केच बना दो, मैं देखूंगा। अगर फेजिबल हुआ तो बनाया जा सकता है। ये सुनने से पहले सरसरी अंदाज में अमामा से कहा था और ये एक सेकंड में अमामा के चेहरे का रंग तब्दील होते देखा। एक छोटी सी बात से इतनी खुश कर देगी इसे अंदाजा नहीं था। शेरी के वक्त जब वो अलार्म की आवाज पर उठा तो वो बिस्तर में नहीं थी। तुम आज पहले उठ गई? वो किचन में काम कर रही थी जब सलार शहरी के लिए वहां गया। वो जवाब देने के बजाय मुस्कुराई। सलार को हैरत हुई। आज इससे शहरी खत्म करने में बड़ी उजरत दिखाई थी, और क्यों ना दिखाई होती। ये रात ज्यादा देर तक रात नहीं रहा था। खाना खत्म करते ही वो अपना स्केच बुक उठा लाई थी। ये मैंने स्केच कर लिया है, जिस तरह का घर में कह रही थी। शहरी करते हुए सलार बुरी तरह चौंका था। वो अपनी किसी हिदायत पर इतने फौरी अमल दरामद की तवक्को नहीं कर रहा था। वो स्केच बुक इसके सामने खोले बैठी थी। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए स्केच बुक को थामते हुए सलाह ने एक नजर इस पर डाली और दूसरी इस घर पर जो इस स्केच पर नजर आ रहा था। घर से ज्यादा इसे स्टेट कहना ज्यादा बेहतर था। इसने हर वो चीज शामिल की थी जिसका जिक्र इसने रात को किया था। पहाड़ों के दामन में खुले सब्जे में एक छोटा सा घर जिसके सामने एक झील थी और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे और समर हाउस। इसने अपने स्ट्रक्चर्स को कलर भी किया था और ये आगे भी। इसे सलार को स्केच बुक बंद करते देखकर जल्दी से अगला सफा पलट दिया। वो इसके घर का यकीनन उगवी हिस्सा था, जहाँ पर स्तबल और परिंदों की मुख्तलिफ किस्म की रिहाइश गाहें बनाई गई थी। इसमें वो फिश फार्म भी था जिसका वो रात को जिक्र कर रही थी। तुम रात को सोई नहीं? एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया, मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला,